So the Lord says, have you decided to follow? प्रभु उन्हें निर्णय लेता है कि क्या आपने निर्णय लिया है कि मेरे पीछे होने के लिए। Unless you accept what happened on the cross, जब तक आप ये स्वीकार ना करो कि जो क्रूस में हुआ है, you cannot follow me. आप उसके पीछे नहीं हो सकते हो। Then if you believe, फिर आप विश्वास करते हो take up the cross and follow me. और आप क्रूस को उठा और मेरे पीछे हो ले। Taking up the cross is not carrying your difficulties. और क्रूस को उठाना ये नहीं कि अपने मुश्किलातों को उठा के चलना, No. नहीं, It is carrying the reality of your death with you always. और आपके जो मृत्यु की सच्चाई है उसे हमेशा अपने साथ लेकर फिरना। So, if you have believed it in your heart, अगर आपने अपने मन में इसका विश्वास किया है, why he is asking us to believe it? क्यों वो ऐसा बोल रहा है कि हम विश्वास करें? Can't I improve myself? क्या मैं अपने आप को बेहतर नहीं कर सकता? Can I not become a better person? क्या मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता? Matthew 5:20. मत्ती 5:20। I can guarantee that unless you live a life that has God's approval and do it more faithfully than the scribes and the Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. Okay. Your translation. आपका अनुवाद पढ़े। For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven. Okay. Righteousness of Pharisees. और फरीसियों की धार्मिकता। How do you express this righteousness of Pharisees? आप इसको कैसे दर्शाओगे? He फरीसियों की says, धार्मिकता। your righteousness must exceed the righteousness of Pharisees. और आपकी जो धार्मिकता है वो फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होना By the चाहिए। way, what do you understand by the word righteousness? तो आप धार्मिकता शब्द से आप क्या समझते हो? What's the meaning? क्या है इसका अर्थ? Eh? Very simply, right standing before God. और परमेश्वर के सामने एकदम सही तरह से खड़ा रहना। That's one of the definitions you can. और Right standing before God. और ये इनमें से एक वाक्य है कि परमेश्वर के सामने सही खड़ा रहना। So, unless your righteousness exceeds the righteousness of Pharisees and Sadducees, जब तक आपकी धार्मिकता फरीसियों और सदूकियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, then you must understand what is the righteousness of the Pharisee. और फरीसियों की धार्मिकता क्या है आपको फिर उसे समझना है। The Lord gave 10 commandments. और प्रभु ने जो है 10 आज्ञाएं दी। There were lot of backsliding happened in the Jewish life. और यहूदी जीवन में कई लोग जो है पीछे हट गए। At one point there was very few people who were following. और बहुत ही कम लोग जो थे यीशु मसीह के पीछे थे। There was a renewal. और एक नयापन। A group of people said we want to follow it. एक झुंड के लोगों ने कहा कि हम उसके पीछे होना चाहते हैं। That group separated themselves. और उस झुंड ने अपने आप को अलग किया। To follow the Lord earnestly. और Follow God earnestly. परमेश्वर के पीछे पूरे मन से चलने के लिए। That group became called Pharisees. और उन झुंड को जो है फरीसी कहा गया। They made this 10 laws became 600 laws. और ये जो 10 आज्ञाएं हैं धीरे धीरे 600 आज्ञाएं बन गई। Because they did not want any loophole. क्योंकि जो है इसमें उन्हें कोई भी जो है कमी नहीं दिखनी चाहिए। Whenever in any country make rules, जब कोई भी देश में नियम और कानून बनते हैं, somebody finds a loophole. इसमें कोई ना कोई तो उसमें कुछ कमी ढूंढ लेता है। Then immediately they make a block for that another law. और उस कमी को हटाने के लिए वो दूसरा कानून बना देते हैं। If you have finally 500 commandments, अंत में अगर आपके पास 500 आज्ञाएं हैं, you will have 1500 bylaws. और उस 500 आज्ञाओं के और छोटे नियम आप उसके बना दोगे 1000 और। In American law system, this is the most difficult thing because everybody will find some loophole. और क्योंकि अमेरिका का जो प्रणाली है उसमें ये बहुत ही दिक्कत होती है क्योंकि कोई भी कानून का वो लोग जो है कमियां निकाल देते So हैं। Pharisees also had the same problem. और फरीसियों के पास भी यही समस्या थी।
They made 600 laws, उन्होंने 600 कानून को बनाया trying to follow it earnestly. और पूरे मन से उसको मानने के बारे में उन्होंने पीछे हो लिए। Some examples. कुछ उदाहरण, On the Sabbath day, if you have a sewing needle on your cloth, अगर सबत के दिन में एक सुई का धागा अगर आपके कपड़े पर होगा you may not be punished. और आपको सजा नहीं दी जाएगी, But if there's a thread attached to the needle, और जो सुई के साथ जो धागा लगा हुआ है, you had an intention to sew, so you'll be punished. क्योंकि आप धागा लगाकर आपके मन में इच्छा थी कि आप उसे सी लें, तो फिर आपको सजा दी So जाएगी। Pharisee will wait there. There was a thread. फरीसी भी इंतजार करेगा, एक तो इसमें धागा टंगा हुआ है। The disciples were walking through the field on Sabbath day. और सबत के दिन में जो है खेत से जो है चेले लोग चल के जा रहे थे, They took some grain and put in the hand like this and put it in the mouth. और उन्हें कुछ दाने को लिया, दाने को हाथ में मसला और मुंह में डाल दिया। I think one Pharisee was hiding behind it. और एक फरीसी, मैं सोच रहा हूँ एक फरीसी जो है वहां पे छुप के बैठा था, Jumped up and said, "You worked." उछाल के बोला तूने काम किया। Jesus Christ made like spittle and a clay and put it on the eye. और यीशु मसीह ने थूक लगा के मिट्टी पर एक अंधे के आंख में लगाया, It was a Sabbath day. और वो सबत का दिन था। This man worked. इसने काम किया, He is a sinner. ये पापी है। Even if he healed, it's a sinner. उसको चंगाई मिल गई, फिर भी ये पापी We है, cannot accept it. इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। That strict there. इतना सख्त था। Then finally the Lord had to tell them, Sabbath was made for man, man was not made for Sabbath. और शब्द का दिन जो है मनुष्य के लिए बनाया गया था, मनुष्य शब्द के दिन के लिए नहीं बनाया गया था। I am the Lord of the Sabbath, I am telling you. मैं शब्द का प्रभु हूँ और मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। They didn't understand, they wanted to kill him. वो नहीं समझे, वो उसे मार डालना चाहते थे। So, that is the righteousness of Pharisees. और फरीसियों की धार्मिकता ये है, In a way you will understand. और आप एक तरह से इसे समझोगे। I will give an example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। Sports people, और खेल कूद में भाग लेने वाले लोग यहाँ पर हैं, खेल कूद में। okay. What was the speed of Bolt? बोल्ट की जो तेजी या रफ्तार कितनी थी? 9.4. 9.4। Now, Christians, मसीही, the Lord says, must run within 6 seconds. मसीह लोग जो है 6 सेकंड में भागने चाहिए, ऐसा परमेश्वर बोलता है। Anybody wants to try? क्या कोई भी 6 सेकंड में भागना चाहता है? Trying anybody? क्या आप प्रयास करना चाहोगे? Why? Why not try? 6 सेकंड में क्या आप प्रयास नहीं कर सकते? Then you cannot enter. नहीं तो फिर आप प्रवेश नहीं कर सकते। Oh. Some of you will say, let me try. आप में से कुछ लोग कहेगा मुझे प्रयास तो करने दो। What is this exceeding the Pharisees' righteousness? और इसमें क्या है? फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर, मतलब 21. 21। You have heard that it was said to the people long ago, do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. It has, you have heard. आपने सुना था। Law was given by whom? नियम किसके द्वारा दिए गए थे? Moses gave them the law. मूसा ने जो उन्हें नियम दिए। So you have heard what? आपने सुना था क्या? You shall not murder. आप हत्या ना करें। Do not murder. हत्या ना करें। Next verse. अगला वचन। परंतु मैं तुमसे परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ English, But I tell you, but I tell you. परंतु मैं तुमसे ये कहता Very, हूँ। very authoritative. काफी अधिकार के साथ बोला गया है। Who can explain the law? कौन नियम का वर्णन कर सकता है? Now he is explaining. That is why he comes with authority. But I say unto you. इसीलिए वो अधिकार के साथ आता है, परंतु मैं तुमसे कहता The हूँ। Pharisees, when they heard it, they were telling what? जब फरीसियों ने जब इसको सुना तो उन्होंने क्या कहा? This man is teaching with authority. ये मनुष्य व्यक्ति तो अधिकार के साथ सिखाता है, Not like we teach. हम जैसा सिखाते हैं वैसा नहीं। Where did he get this knowledge from? उसको ये ज्ञान कहाँ से मिला? He's a carpenter's son. वो तो बढ़ई का बेटा है। Then they took offense at him.
और फिर उसके ऊपर उन्होंने जो है विरोध किया। Then what the Lord said? तो फिर प्रभु ने क्या कहा? A prophet is not known in his own country. और एक भविष्यद्वक्ता जो है अपने खुद के नगर में वो जाना नहीं जाता। Okay. Where does murder begin? और हत्या करना कहाँ पे आरंभ हुआ? What I say unto you, read. परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, उसे आगे और पढ़े। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। Anger. क्रोध। Where does murder begin from? और हत्या जो है किधर आरंभ हुई? Anger. क्रोध। In anger, you begin to say something, fool and raka, everything. और जो आपने क्रोध में जो है निर्बुद्धि, निकम्मा और मूर्ख कहा, Finally ends in murder. और अंत में वो हत्या में समाप्त होता है। So every law has the letter of the law. और हर नियम को की जो है, जो नियम का एक लेख होता है। What is that? और वो लेख क्या है, पत्र क्या Letter of the है? law, murder is what? Stabbing and killing. और जो नियम क्या है पत्र का, कि हत्या करना मतलब चाकू मारकर हत्या करना। But what is the spirit of the law? लेकिन आत्मा का नियम क्या है? No, spirit of the law means, I don't know how you translate it. A written letter is there. एक लिखा हुआ पत्र है, इसका अंदर का meaning. इसका अंदर का जो अर्थ है That is what the spirit of the law. वो है, वो इसके अंदर का जो अर्थ है, आत्मा का नियम वो है। ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है, ये आत्मा का नियम है। इस पत्र के अंदर आत्मा का नियम नहीं। You don't understand what see, I make a statement. That is the verbal, what is words are outside is called letter of the law, word. But inside I have another meaning for it. ओके तो मैं जो बोलता हूँ वो है पत्र का नियम, लेकिन मेरे अंदर एक जो इच्छा है उसे कहते हैं, ये जो नीचे लिखा है, आत्मा का नियम। Murder, not murdering is letter. Murder begins from anger is spirit of the law. और मृत्यु, हत्या जो है वो पत्र के द्वारा नहीं है, लेकिन क्रोध के द्वारा। और वो कहाँ से शुरू होती है? हमारे अंदर जो इच्छा है उसके द्वारा। What did Pharisees keep? फरीसियों ने क्या रखा? They kept अंदर the letter of the law. उन्होंने जो है, जो पत्र जो है, नियम का पत्र है, उसे रखा। What does God want us to keep? लेकिन परमेश्वर हमें क्या रखना चाहता है? Spirit of the law means He doesn't want us to become angry. और हमारे जो अंदर है उसे वो रखना चाहता है, मतलब हम क्रोध ना करें। I can refrain from killing. मैं हत्या से तो परहेज कर सकता हूँ, How do I stop from becoming angry? लेकिन क्रोध ना करूं, उससे मैं कैसे परहेज करूं? Where is anger? तो क्रोध कहाँ है? Outside or inside? अंदर की बाहर? Nobody may know it. कोई इसे जान नहीं पाएगा। You can sit there with anger toward me. आप क्रोध के साथ वहां पे बैठ सकते हो and मेरे विरुद्ध, laugh at me. और मेरे ऊपर हंस भी सकते हो, It is inside. क्योंकि वो अंदर है। So the Lord says, your righteousness must be deep inside. और इसलिए प्रभु कहता है तेरी धार्मिकता जो है बहुत गहरी होनी चाहिए So what अंदर। is your response? तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? Can you try to become? क्या आप ऐसा बनना की कोशिश करोगे? Okay, then he takes 27. 27 पढ़े। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करो, Ah. ना करना। व्यभिचार नहीं करना. Do not commit adultery. व्यभिचार ना करना। The letter of the law is physical adultery. और पत्र का जो नियम है वो है शारीरिक व्यभिचार। Pharisee will say, I have never committed adultery. और फरीसी कहेगा कभी भी मैंने व्यभिचार But नहीं where किया does है। adultery begin from? लेकिन व्यभिचार शुरू किधर हुआ? Mind में. मन में। Read next one. अगला वचन पढ़े। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। He is asking, have you committed adultery in the mind? वो पूछ रहा है क्या आपने मन में व्यभिचार किया है? Every head is turning like this. और सारा सर जो है ऐसा मुड़ जा रहा है। Nobody is able to look at you. कोई भी उसकी ओर नहीं देख पा रहा है।
Lord, how is it possible? और प्रभु ये कैसे संभव है? Can anybody try? क्या कोई इसका प्रयास कर सकता है? No, if you try, you can, no? अगर आप प्रयास करोगे तो आप कर सकते हो ना। Hindu mythology, there is a story. और हिंदू मिथ्याओं में ऐसी कहानियां हैं, बातें हैं। One Valmiki started fasting and praying. एक वाल्मीकि ने जो है उपवास लिया और प्रार्थना करने लगा। He is, I think it's Valmiki, the ant, what you call, ant hill started growing on him. और जो चींटी का जो पहाड़ है उसके ऊपर उसके शरीर में बनने लगा। Because he was so, I mean, what you call, not moving, so it began to grow on. क्योंकि वो हिल नहीं रहा था और तपस्या में था, तो जो चींटी का पहाड़ है उसके ऊपर बनने लगा। Finally, only opening for his eye was there. केवल अभी उसका आँख ही खुला था, बाकी सब चींटी से भर गया। Gods of heaven became afraid that he will become another god. और जो स्वर्ग के जो भगवान थे वो डर गए कि कहीं ये दूसरा एक भगवान ना बन They जाए, wanted to destroy his tabas. और उसकी तपस्या का वो लोग नाश करना चाहते थे। They sent one Menaka to dance before. और मेनका को भेजा कि वो उसके सामने नृत्य करे, He started dancing और वो नाचने लगे and his tabas went off. और उसकी तपस्या भंग हो गई। In that story, what they are telling, और उस कहानी में वो लोग क्या बता रहे हैं? by your willpower you are not able to overcome sin. आप अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा आप पाप पर जय नहीं पा But सकते they हो। don't have an answer. उसका उनके पास उत्तर नहीं है। But the maximum willpower will fail, they agreed. और लेकिन जो सबसे अधिकतर इच्छा शक्ति है वो हार जाती है। The Lord tells you must keep the letter of the law, the और- spirit of the law. और परमेश्वर कहता है कि जो आपके अंदर है उसे आप, जो नियम है उसे आप बनाए रखें। What will you say? आप क्या कहोगे? How is it possible? ये कैसे संभव है? That is speed must become 6. तभी आपकी जो तेज की रफ्तार की जो गति है वो 6 बनना Now चाहिए। itself you are struggling. अभी आप संघर्ष कर रहे हो Now he is going on talking. और ये अब बार बार बात करते जा रहा है। What is the last verse? अंत का जो वचन क्या है? 5 last. 5 का अंतिम वचन। Be perfect, therefore as your heavenly Father is perfect. Not Pharisees' perfection now. यहाँ पे फरीसियों की सिद्धता नहीं है। What is the speed now? अभी क्या है रफ्तार? Before I open my eyes, you must run. और मैं अपनी आंखों को खोलने से पहले आप दौड़ें। 0.01 second. 0.01 दशमलव। Anybody wants to try? क्या कोई ऐसा प्रयास करना चाहता है? Anybody wants to try? क्या कोई प्रयास करना चाहता है? Is it possible? क्या ये संभव है ऐसा दौड़ना? Eh? Your perfection must be the perfection of God Himself. आपकी जो सिद्धता है वो परमेश्वर की सिद्धता होनी So चाहिए। what do you do now? तो अब आप क्या करोगे? Thumb. गिर जाओगे। Who can do that? कौन इसे कर सकता है? Then फिर you cannot enter. आप प्रवेश नहीं कर सकते। What to do? अब क्या करें? This is how dissolution comes. और इसी में से जो है अंतर आता है, Disappointment. निराशा। I am trying, I am not reaching anywhere. मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। Finally you say, hopeless. अंत में आप कहोगे आशाहीन हूँ, Nobody can do this. ये कोई नहीं कर सकता। Then you form a new theology. फिर आप एक नया वैध शास्त्र बनाते हो। As far as possible, I will be a good Christian. जितना अधिकतम हो सके मैं एक अच्छा मसीह बना रहूंगा। As far as possible. जितना भी मुझसे हो सके या संभव है मैं एक अच्छा मसीह बना That रहूंगा। means, if the standard were, if the standard is here and you are here, अगर स्तर यहाँ पर है और आप इस स्तर पर हो, now you are saying as far as possible is this much. और आपसे जितना संभव हो सकता है वो यहाँ तक संभव होगा बस। Then, Abel who has reached here, you will say, you should not accept him. और एबेल जो यहाँ पे पहुंच गया है वो बोलेगा यहाँ पे ये जो नीचे है ना That is not fair, इसे Lord. स्वीकार I नहीं कर। struggled and reached here.
परमेश्वर ये सही नहीं है, मैंने इतना संघर्ष करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। Now Jose is here. जो यहाँ पर है, And he says, no Lord, you cannot accept him. I have come here. प्रभु आप एबेल को जो है स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि मैं तो इधर पहुंच गया हूँ। Titus is here. वो टाइटस भाई जो हैं इधर हैं। Now he tells you cannot accept Jose. आप जोस को स्वीकार नहीं कर सकते। Now the Lord says, I am here. I cannot accept anyone of और you. प्रभु कहता है मैं यहाँ पर हूँ, मैं आप किसी को भी स्वीकार नहीं कर सकता। Because he must be just, no? क्योंकि वो न्यायी होना चाहिए ना। He cannot show favor. वो जो है भेदभाव नहीं दिखा सकता। So what will you all of us do? तो आप सब लोग क्या कहोगे? Your use of surrendering is no good. How? आपका समर्पण कोई अच्छा नहीं है, कैसे आप उधर पहुंचोगे? Now comes the gospel. अभी जो सुसमाचार आता है। 1 Corinthians, पहला कुरिन्थियों first chapter. पहला अध्याय। Turn and keep. We'll come to this. Now look at this paper. आइए इस कागज की ओर हम देखेंगे। I have struggled and struggled and struggled, became clean like this. और मैंने संघर्ष किया और मैं ऐसा कोरा बन गया। Now I am coming to God. मैं अभी प्रभु के पास आ रहा हूँ। Lord, I have become all right now. प्रभु देखो मैं अभी एकदम सही बन गया हूँ। Can you accept me? क्या आप मुझे स्वीकार करोगे? Come near me. मेरे करीब आओ, Let me see you. मुझे तुझे देखने दो। Turn. मुड़। All my righteousness is filthy rags inside in before his eyes. और मेरी जो भी धार्मिकता है कूड़ा कचरा है उसकी दृष्टि के सामने। Filthy rags, the word is menstrual clothes. और वो मैले चितड़े हैं परमेश्वर की दृष्टि के सामने। Jose cleaned his hand nicely 3 times. जोस ने अपने हाथ को 3 बार अच्छे से साफ किया। And he put his hand into the pickle and took it. और उसने अपने हाथ को अचार के अंदर डाला और अचार निकाल लिया। Wife kept it there. Wife kept it there. बीबी ने उसे वहाँ रखा था। 2 days later it got spoiled. 2 दिन के बाद अचार खराब हो गया। Why? क्यों? Why, Susan? Why it got spoiled? क्यों अचार खराब हो गया? He cleaned it so well, no? क्योंकि मैंने हाथ तो अच्छे से धोया था ना। It was not visible to his eyes. और जो इसके अणु है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। In your eyes, कीटाणु you are clean. आपकी आंखों के सामने आप जो है एकदम कोरा हो। In God's eyes, you are. परमेश्वर की आंखों के सामने You came into the room very late in the night. और आप जो है कमरे में रात में काफी देरी से आए। This hall. ये हॉल में। You are very tired. You slept off. और आप काफी थक गए, आप सो गए। In the night, he put on the light. और रात को मैंने जो है बत्ती जला दी लाइट All around him is dirt now. Dirt. की। सब जगह जो है गंदगी है। He says, "Did I sleep here?" क्या मैं इस गंदगी में सोया? Why he slept very comfortably? क्यों वो इतने आराम से सो गया? In the night, there was no dirt. In the morning, when the bright light came, he saw if the whole place is dirt. क्योंकि रात में जब वो सोया तो गंदगी नहीं थी, लेकिन सुबह जब उजियाला आया तो पूरे जगह में क्या थी? गंदगी थी। When you stand in darkness, you are very white. जब आप अंधकार में खड़े रहते हो तो आप एकदम कोरा रहते हो। When light comes, you are dirty. लेकिन जब आप उजियाला आ जाता है तो आप गंदे हो जाते हो। When you come nearer to the light, जब आप उजियाले के और करीब आते हो। prophet Isaiah cried out, और यशायाह नबी ने ऐसा रो के कहा, "Woe unto me, हाय है मुझ पर, a man of unclean lips." और मैं जो है बुरे मुंह का मनुष्य हूँ, होठों का मनुष्य हूँ। He thought he was a prophet. वो एक भविष्यद्वक्ता था।
But suddenly he became unclean man. लेकिन वो अचानक से अशुद्ध व्यक्ति He बन saw गया। the glory of God. उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। Till you stand outside, you're all clean. जब तक आप बाहर खड़े हो तब तक आप शुद्ध हो, But when you come closer to the light, जब आप उजियाले के करीब आते हो you become miserable. आप एकदम जो है हीन हो जाते हो। Many of our confidence is because you are standing very far from the light. और हमारा हियाव इतना अधिक क्यों है? क्योंकि हम उजियाले से काफी दूर खड़े हैं। But when you come closer to the light, you will see all your dirt. जब आप उजियाले के करीब आओगे तो अपने सारी गंदगी को आप देख लोगे। All your boldness will fall. आपकी जो सारी दृढ़ता है वो गिर जाएगी। A man of unclean lips. और मैं जो है अशुद्ध होठों का मनुष्य हूँ। Now, how can I come? तो मैं कैसे आ सकता हूँ? I am unclean. मैं अशुद्ध हूँ। Now suppose this is Lord Jesus Christ. मान ले कि ये प्रभु यीशु मसीह है। Is he perfect? क्या वो सिद्ध है? Was there any sin in him? क्या उसके अंदर कोई पाप था? Was he righteous? क्या वो धार्मिक था? Can he enter God's presence? क्या वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकता है? Now, अभी suppose you are kept here मान ले कि आपको यहाँ पे रखा गया है, and you are closed. आपको बंद कर दिया गया है। Who is your righteousness now? आपकी धार्मिकता अभी कौन है? Is it perfect? क्या ये सिद्ध है? Now you read from 1 Corinthians अभी आप पढ़े पहला कुरिन्थियों chapter 1 पहला अध्याय verse 30 30वां वचन and 31. 31 30 और 31। Because of him you are in Christ Jesus, Because of whom? किसके द्वारा? Because of whom? किसकी ओर से, किसके द्वारा? Because of Jesus you are in Jesus. क्या आप यीशु के द्वारा यीशु में हो? No. नहीं, Because of God the Father, क्योंकि पिता परमेश्वर के द्वारा you are in Christ Jesus, you are in Christ Jesus, who became to us who became to us wisdom from God, wisdom from God, that is righteousness and sanctification. righteousness, sanctification and redemption. Who became your righteousness? आपकी जो धार्मिकता कौन बना? कौन है? हैं? Are you righteous? क्या आप धार्मिक हो? Are you righteous? क्या आप कोरा कागज के समान हो? Who is my righteousness? मेरी धार्मिकता कौन है? Is it perfect? क्या ये सिद्ध है? Is it higher than the perfect righteousness of Pharisees? क्या वो फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर है? What's the difference? क्या है अंतर? Righteousness of Pharisees, they were trying to attain by effort. और जो फरीसियों की जो धार्मिकता है वो उसे प्रयासों के द्वारा हासिल करना चाहते थे। Attain by effort. अपने प्रयासों के द्वारा उसे हासिल करना। A Christian's righteousness is obtained by grace. और एक मसीह की जो धार्मिकता है वो उसे अनुग्रह के द्वारा पाया जाता है। It's not attained, it is obtained. और इससे जो है हासिल नहीं किया जाता है, ये आपको दिया जाता है। Received by faith, by grace. और आप इसे विश्वास और अनुग्रह के साथ ग्रहण करते हो। Do you understand? क्या आप समझ रहे हो? समझे? No, I will repeat it. Yes. Received by grace through faith. और through faith by grace. और विश्वास से अनुग्रह के द्वारा आप इसे पाते हो। You obtained it, received it. आपने इसे ग्रहण किया है। They were trying to attain it. वो इसे पाने की चेष्टा में थे। I'll give an example, you may understand. मैं एक उदाहरण दूंगा, आप इसे समझोगे। Operation theatre is a sterile area. और जो ऑपरेशन जो थिएटर होता है वो वहाँ पे जो है आपको सब चीज साफ रखना पड़ता है, उसमें कुछ भी कीटाणु नहीं होने चाहिए। Sterile. You use the word sterile. और स्टेराइल शब्द मैं इस्तेमाल करता हूँ। You are unsterile. आप जो है अनस्टेराइल हो। How do या उसके साथ मनोरंजन करना चाहते हैं। most corrupt work today is medical practice. सबसे भ्रष्ट काम जो आज है वो
कपड़ा देते हैं sterile garment, और उस वस्त्र को वो धारण कर लेते put हैं, on the sterile glove. और जो ग्लव्स है उसको भी धारण कर लेते हैं। Are you sterile now? क्या अभी आप एकदम साफ हो या स्टेराइल हो? Yes. Can you enter the theater? क्या आप थिएटर में प्रवेश कर Can सकते you हो? put your hand into the stomach? क्या आप पेट में हाथ डाल सकते हो? How did he become sterile? कैसे ये साफ और स्टेराइल बन गया? Putting on the sterile garment. क्योंकि उसने साफ और कीटाणु रहित कपड़ा पहना। When you come to God, जब आप परमेश्वर के पास आते हो the Lord Jesus Christ gives you the right garment of righteousness. और जब आप यीशु मसीह के पास आते हो वो आपको धार्मिकता का वस्त्र देता है। When you receive it by faith, जब आप विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण करते हो, the unclean sinner is made righteous before God. और जो अशुद्ध पापी है वो परमेश्वर के सामने धार्मिक बन जाता है। Did he work for that? क्या आपने उसके लिए कार्य किया? No. नहीं, It was given to you. ये आपको दिया गया है। You received by आपने इसको ग्रहण किया faith. विश्वास से। You have declared now आपने घोषणा की है, righteous. आप धार्मिक हो। Is your righteousness perfect? क्या आपकी धार्मिकता सिद्ध है? That is the only way to enter into God's presence. और वही एक रास्ता है परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का। It's not as far as possible. ये जितना हो सकता है संभव है वैसा नहीं है। You must be perfect as the Father in heaven is perfect. आप भी सिद्ध बने जैसा परमेश्वर जो स्वर्ग में है सिद्ध है। When you study Matthew 5, 6, 7, जब मत्ती 5 का 6 और 7 आप पढ़ते हो, it declares the righteousness of God, ये परमेश्वर की धार्मिकता की घोषणा करती है। and only response you will have is और केवल एक ही प्रतिक्रिया जो आपके पास होगी, fall down and say, I cannot achieve it. और दंडवत होकर आप गिर जाएं और कहें मैं इसे हासिल नहीं कर सकता। You understand? क्या आप समझ रहे हो? Christian life is not an achievement to boast about. और मसीह जीवन ये नहीं है कि आपने कुछ हासिल कर लिया और हासिल किए पर आप घमंड खा रहे हो। Will you remember? क्या आप इसे याद रख लिख के रखें? Christian life is not an achievement to boast about. और मसीह जीवन आपने कुछ हासिल कर लिया और उसके ऊपर घमंड करना नहीं है। Then what it is? फिर वो क्या है? It is the life of Christ manifested in you when He lives in you. और वो मसीह का जीवन जो आपके ऊपर प्रकट हुआ है जब वो आपके अंदर जीवित है। When Jesus Christ is living in you, His life is manifested. That is Christian life. जब यीशु मसीह आपके अंदर जीवित है तब यीशु मसीह का जीवन आपके द्वारा प्रकट होता है, वो है मसीह जीवन। Abide in me, I will abide in you. मुझ- You will bear much fruit. मुझ में बना रहे जैसे मैं तुझ में बना हूं और तू अधिक फल लाएगा। Heart is not working. हृदय काम नहीं कर रहा है, A pacemaker is kept पेस मेकर रखा गया है and it works. और हृदय काम करने लगता है। Jesus Christ is your pacemaker. यीशु मसीह आपका पेस मेकर है। Do you boast in your ability? क्या आप अपने कौशल पर आप घमंड करते हो? No. नहीं। You thank God for the pacemaker. आप धन्यवाद देते हो पेस मेकर का जो यीशु मसीह आपको दिया गया है। You thank God for pacemaker आप धन्यवाद देते हो पेस मेकर का because you are living by the pacemaker. क्योंकि आप उस पेस मेकर के द्वारा जी रहे हो। That is life on here. But in God's presence you enter because of Jesus Christ. और आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हो यीशु मसीह के द्वारा। The righteousness of Jesus Christ becomes your righteousness by faith. और यीशु मसीह की धार्मिकता आपकी धार्मिकता बन जाती है विश्वास के द्वारा। The Lord gives an example, और प्रभु एक उदाहरण देता है, a parable. एक दृष्टांत। A king arranged a feast एक राजा ने जो एक भोज रखा and he invited a lot of poor people to come because others did not come. और काफी गरीब लोगों को बुलाया उसने क्योंकि बाकी जिनको बुलाया वो आए नहीं। They were all in the hall और वो सब जो हॉल में थे wearing wedding garments. और जो है शादी का वस्त्र पहने हुए। How did the poor people get wedding garments? कैसे गरीब लोगों को शादी का वस्त्र मिल गया? How? They were given. उन्हें दिया गया था। One man came there और एक व्यक्ति वहां पे आया
I will go in my own garments. मैं अपने खुद के वस्त्र में जाऊंगा। He was sitting there and having meal. और वहाँ बैठ के वो भोज कर रहा था। King came and saw. और राजा आया और देखा Everybody is having wedding garment. This man doesn't have. सबके पास शादी का वस्त्र पहना हुआ, इसके पास तो वस्त्र नहीं है। What happened to you? क्या हुआ तुम्हें? He was speechless. और वो जो है चुपचाप हो गया। Bind him, इसको बांध दे, throw him out. इसको बाहर फेंक दो। What is he telling? यहाँ पर वो क्या कह रहा है? You cannot enter God's presence in your righteousness. और आप अपनी धार्मिकता में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। The garment was given free. और जो वस्त्र है जो मुफ्त में दिया गया था, It has to be received. और इसे आपको ग्रहण करना है। Are you trying to enter as a good person? क्या आप एक अच्छे व्यक्ति हो वो बोलकर प्रवेश करना चाहते हो? Now, once you have entered, जब आप एक बार प्रवेश कर चुके हो, all the responsibility of the house will be upon you. और जो घर की जो सारी जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है। You are not saved by work, good आप- work, आप अपने अच्छे कामों के कारण नहीं उद्धार पाए हो, but you are saved for good work. आप अच्छे काम करने के लिए उद्धार पाए हो। Because of the presence of God with you now, you can do lot of good works. और अभी परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है तो आप भले कामों को कर सकते हो। If you abide in Him, fruit will come out. आप उसमें अगर बने रहोगे तो फल आएगा, Fruit will come. फल आएगा। One of us, psychiatrist, और एक जो है साइकेट्रिस्ट, she was examining a patient. और वो एक मरीज को जो है जांच रही थी। A school final girl was helping the psychiatrist. और जो स्कूल के जो फाइनल अंत के वर्ष में पढ़ने वाली एक लड़की जो है साइकेट्रिस्ट की मदद कर रही थी। Suddenly the patient spat on the face of the psychiatrist और जो मरीज ने जो है थूक दिया साइकेट्रिस्ट के and मुंह gave a पर, slap on the face. और साइकेट्रिस्ट के मुंह पर एक थप्पड़ भी दे दिया, The specs fell off, और साइकेट्रिस्ट का चश्मा गिर गया। but she got slowly up, went and washed the face, put on the specs, wrote medicine for him and sent. लेकिन वो आराम से उठी, उसने अपना मुंह धोया, चश्मा लेके लगाया और कागज लिया और दवाई की पर्ची बना दी। This girl later became a nurse. और जो ये लड़की वहाँ पे खड़ी थी वो बाद में नर्स बन गई, She wanted to become a Christian. और वो लड़की मसीह बनना चाहती थी। Somebody asked, why do you want to become a Christian? उसने पूछा क्यों तुम मसीह बनना चाहती हो? How could that doctor continue to treat the patient in spite of being beaten? और कैसे वो डॉक्टर ने जो है आगे बढ़कर उस व्यक्ति का इलाज किया जिसने उसको थप्पड़ मारा? It must be because of Christ. और ये क्योंकि हो सकता है मसीह के द्वारा, I want that Christ. और मुझे वो मसीह चाहिए। There used to be open air meetings, और खुल्लम खुल्ला जो सभा होती है वो होती थी हमारे यहाँ Sunday evening. रविवार शाम को। We'll invite the patients and the bystanders to join there. और जो मरीज हैं और जो पीछे लोग खड़े रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि आप आओ, इसमें शामिल हो जाओ। I used to give the message, और मैं संदेश बांटता था उधर। and after that I will call them if they have made any decision to come and meet me in the room. और मैं उनको बाद में बुलाता था, अगर आपने कोई निर्णय लिया है तो आए और मुझसे कमरे में मिले। I was about to talk to few people. और मैं जैसे ही कुछ लोगों से बात करने वाला था, One man said, I did not come because of your message. और एक व्यक्ति ने कहा मैं आपके संदेश के कारण नहीं आया हूँ। Then why did you come? फिर आप क्यों आए हो? That's the story. वो एक कहानी है। When I came here, I took the OP card. It was at that time 25 paisa. और जब मैं इधर आया मैंने बाहरी मरीज का जो कार्ड लिया वो 25 पैसे का था वो समय पर। I gave 1 rupee or something. और मैंने 1 रुपए दिया अब काउंटर में, And she said, there is no change. और उन्होंने कहा कि छुट्टा नहीं है, I will give you later. मैं ये आपको पैसे बाद में वापस करूंगी। Later means you don't get it. बाद में मिलेगा मतलब फिर पैसा So मिलता I went नहीं। off. I went off. फिर मैं वहां से चला गया। It was not 1 rupee, 50 paisa. और उस व्यक्ति ने 50 पैसे दिए थे। In the evening, I got admitted in the ward. और मैं जो है भर्ती हो गया था वार्ड में। In the evening, this girl found me out in the ward and returned 25 paisa. to me. और उस लड़की ने जो मुझे पूरे वार्ड में ढूंढा और जब मैं मिला तो मुझे 25 पैसे वापस कर दिए।
That is why I want to know Jesus. इसलिए मुझे मसीह कौन है जानना है। Faithfulness of 25 paisa brought a man to Christ. 25 पैसे की विश्वास योग्यता एक व्यक्ति को मसीह में लेके आई। There was a doctor in Tirupatur ashram, तिरुपतुर आश्रम में एक डॉक्टर थे, Dr. Peyton. डॉक्टर पेटन। He came from England, वो इंग्लैंड से आए थे from a very rich family. और एक काफी अमीर परिवार से। Almost 100 years back he came. 100 साल पहले करीबन वो आए थे। When he came, his mother gave him a pocket money of 40,000 pounds. और जब वो आए तो उसकी माँ ने उसको जो है जेब खर्च के लिए 40,000 पाउंड रुपए दिए। Only 100 rupees for a pound. और एक पाउंड जो है केवल 100 रुपए है। Now, somebody when they went there, और जब कोई वहां पर गया, traveling in a train, जब वो ट्रेन में सफर कर रहा asked था a co-passenger, somewhere here is Dr. Peyton's house, where is it? और सहयात्री से पूछा यहाँ पर कहीं तो डॉक्टर पेटेंट का घर है, वो किधर है? He said it begins now. उसने बोला कि अभी ये घर शुरू होता है। It's a castle. Castle. Palace. और वो एक महल है। This man, while he was working in the Tirupatur ashram, when he और जब ये व्यक्ति तिरुपतुर आश्रम में काम कर रहा था और वो जब चक्कर काटता है उनके चारों ओर, if a patient is about to vomit, अगर एक मरीज उल्टी करने वाला है the nurse will run for kidney tray. और जो नर्स जो है दौड़ेगी किडनी का जो ट्रे है वो लाने के लिए, This doctor will hold the hand like this, receive the vomiters. और जो डॉक्टर जो है अपने हथेली को ऐसे रख देगा कि वो उल्टी जो उसके हाथ में गिरे, And he will go and wash the hand and come back. और वो फिर जाके अपने हाथ को धो के वापस आ जाता था। Nurse will come with a kidney tray. और नर्स जो है किडनी का जो ट्रे रहता है वो लेके आती थी। Patients used to tell, if this man touches us, we'll become all right. और लोग मरीज कहते थे अगर ये हमको छू भी देना तो हम लोग चंगे हो जाएंगे। He was invited for a EU meeting in Chennai. और ईयू का एक सभा के लिए उन्हें चेन्नई बुलाया गया था। There was a shamana. और एक सामना ऐसे पंदल लगाते वैसा लगाया गया था। He was going and sitting at a corner on a bench. और वो एक कोने में जाकर एक बेंच में बैठे हुए थे। The secretary who invited did not know who is it. और जो सेक्रेटरी जो आमंत्रित किया था उन्हें मालूम नहीं था ये कौन आके बैठा है। A cow passed through that. और एक गाय जो है वहां से चल के गई, It put the dung. उसने गोबर डाल दिया उधर। Secretary was running around for somebody to remove it. और सेक्रेटरी जो है यहाँ पे घूम रही थी कि ये गोबर किसी से तो उठा के हटवाए। He took it with his hand and put it outside, washed his hand and sat there. और जो आए थे उन्होंने अपने हाथों से इस गोबर को उठाया और उसे बाहर फेंक दिया और हाथ धो के वहां पे बैठ गए। Meeting time, he was introducing the inviters. और जब सभा जब आरंभ हुई तो जिन्हें आमंत्रण दिया गया था उन आमंत्रण देने वालों का परिचय हो रहा था। Dr. Peyton. डॉक्टर पेटन। And he turned and he saw this man. और पीछे मुड़ के देखा तो वही व्यक्ति था वो। He said he was speechless for 3 minutes. और वो व्यक्ति जो है स्तब्ध रह गया 3 मिनट तक। These are different people. ये बहुत अलग लोग हैं। In our place, हमारी जगह में our senior doctor, हमारा जो सीनियर डॉक्टर, in his house once a thief got in. और उसके घर में एक दिन चोर घुस गया। He searched everywhere, he didn't get anything. और चोर ने पूरा ढूंढा, उसे कुछ मिला नहीं। He had a new torch in his hand, he left it there and went off. और चोर के पास एक नया टॉर्च था और वो टॉर्च वो वहां पे छोड़ के चला गया क्योंकि कुछ मिला नहीं बोल के। This doctor used to come in a lady's cycle. और ये जो डॉक्टर हैं जो स्त्री लोग जो साइकिल चलाते हैं उस साइकिल में From आते his थे house to the hospital, और अपने घर से अस्पताल तक half a kilometer. आधा किलोमीटर। He used to keep the cycle outside the OPD. और जो साइकिल है वो ओपीडी के बाहर वो रखते थे It's near the main road. और जो मेन रोड है उसके पास ही, He won't lock it. और जो है उसको साइकिल को ताला नहीं मारता था। One day somebody stole it. और एक दिन किसी ने वो साइकिल लेके चला गया। Everybody was complaining, who took this cycle, doctor's cycle, वो doctor's सब cycle. शिकायत करने लगे किसने डॉक्टर की साइकिल लेके चला गया, कौन लेके चला गया। I said it will be there tomorrow. मैंने कहा कि कल ये साइकिल वापस आ It जाएगी was again there tomorrow. और कल वो साइकिल वापस आ गई। Do you know why? क्यों आपको मालूम है? Nobody else could pedal that cycle. वो साइकिल को कोई भी जो है उसको पैर मार के चला नहीं सकता। It's an old cycle. वो बहुत पुराना साइकिल है।
thief left it back. चोर ने भी वो साइकिल वापस लाके छोड़ दिया। Finally, he developed heart attack once. अंत में जो है उनको जो है दिल का दौरा पड़ा। So we said, you must take rest, you must not ride the cycle. और ऐसा बोला गया कि आप अभी जो है साइकिल ना चलाएं, आप आराम करें। He started walking and coming. और वो चल कर आने लगा अस्पताल। We are all junior doctors. हम सब जो है जूनियर डॉक्टर लोग हैं। He has 3 postgraduate degrees. उनके पास 3 पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रियां हैं। When he puts the duty, जब वो जो है अपना कर्तव्य कार्य को डालते हैं, if 6 days he puts duty, 7th day he will take duty. और 6 दिन का जो काम है वो लगाएंगे, 7वां दिन का जो काम है वो खुद ले लेते हैं। He kept no difference between anyone. वो किसी के बीच भी उन्होंने भेदभाव नहीं रखा। If food is served, जब खाना बांटा जाता है so fruits are served in the meeting, और ऐसा खाना जो है he will सभा see में, whether everybody gets. वो देखते कि क्या सबको खाना मिला, Finally, only he will take. अंत में ही वो खाना लेते हैं। He never took it. उसे कभी भी उन्होंने ऐसा खाना लिया नहीं। He was willing to take the blame of everyone on him. और सब लोगों का जो आरोप होता है, किसी पर आरोप लगता है, वो आरोप वो अपने ऊपर ले लेते थे। So in any meeting, if argument comes, when it comes to him, it will stop. और कोई भी अगर सभा में अगर कोई बहस होए, अगर वो बहस उनके ऊपर आ जाए तो वहां पर वो रुक जाती थी। Everybody wants to blame others, सब लोग दूसरों पर आरोप लगाना चाहते हैं, but he will take the blame. लेकिन वो खुद अपने ऊपर आरोपों को ले लेते थे। Argument stops. बहस रुक जाती थी। We had so many people like that. और हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग थे। It's all because of Christ. ये सब है मसीह के द्वारा। Yes. We'll have some tea. हम थोड़ा चाय पिएंगे। So what we learned, हमने क्या सीखा? righteousness of a Christian is not attained but obtained. और मसीह की जो एक धार्मिकता है उसे हासिल नहीं किया जाता, उसे ग्रहण किया जाता है, दिया जाता है। Not by effort but by grace, by faith. अपने प्रयासों के द्वारा नहीं, विश्वास से, अनुग्रह के द्वारा। Even if you try, you cannot reach the righteousness of God. अगर आप प्रयास भी करें तो भी आप परमेश्वर की धार्मिकता के पास नहीं पहुंच पाओगे। But by faith, your righteousness is made perfect. लेकिन विश्वास के द्वारा आपकी धार्मिकता को सिद्ध बनाया जाता है। That's why he said, I am the way. No one comes to the Father except through me. इसीलिए उसने कहा, मैं ही मार्ग हूँ, मेरे सिवाय मेरे अलावा कि कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। When the way is made so clear and easy, जब रास्ता इतना स्पष्ट और आसान बनाया गया है, why many people are not coming? क्यों कई लोग इस रास्ते में नहीं आ पा रहे हैं? Why people are telling, if you tell them, go and shave off your hair, they will do that. अगर आप उसे कहो, उन लोगों से कहोगे कि आप टकला हो जाओ, तो लोग टकला होने के लिए तैयार हैं। Climb that mountain, they will do that. उनको पहाड़ चढ़ने बोलो तो लोग पहाड़ भी चढ़ जाते हैं। Fast for 40 days, they will do. 40 दिन उपवास लेने बोलो तो लोग 40 दिन उपवास भी ले लेते हैं। Contribute so much money, they will do. धनराशि को दे दो बोलेगा तो धनराशि भी देने को तैयार हैं। Believe, they won't. विश्वास वो नहीं करेंगे। Why? क्यों? Your throne will be shaken. आपका जो सिंहासन है ना हिल If you जाएगा। do all this, your throne will still be retained. और अगर आप ये सब करते रहोगे तो आपका सिंहासन बना रहेगा। That's the problem. ये है समस्या। Difficulty in believing. और विश्वास करने में जो है मुश्किलात आना। Don't say that you never understood all these things. और कभी ये मत कहना कि आपने इन बातों को समझा नहीं। If you don't believe, अगर आप विश्वास नहीं करोगे, it is your responsibility. ये आपकी जिम्मेदारी है। Not because you didn't understand, ये नहीं कि आपने समझा नहीं इसलिए, but because I don't want to. क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। It's your choice. ये आपका चुनाव है। Okay. Shall we go for tea break and come? हम चाय के अंतराल के लिए जाएंगे और वापस आएंगे। 1 minute silence. 1 मिनट की हम शांत रहेंगे।